دے, اس کو تنبیہ کرے, اس کو نصیحت کرے, اس کو خبردار کرے, اور وہ راست بازی میں زندگی گزارے تو وہ اپنی جان بچائے گا, اور تو نے بھی اپنی جان بچا لی. پر اگر تو نے اسے آگاہ نہ کیا اور وہ مر گیا تو اس کے خون کی باز پرس میں تجھ سے کروں گا. اور پھر ہم نے یسایا کی کتاب 58 باب میں سے پڑھا کہ گلا پھاڑ اور دریغ نہ کر, اور میرے لوگوں پر ان کے گناہوں کو اور ان کی خطاؤں کو ظاہر کر. اور پھر ہم نے موسیٰ کے تعلق سے سیکھا کہ موسیٰ نے جا کر ڈائریکٹ جو ہے وہ لوگوں کو آگاہ کیا کہ تم بت پرستی کر رہے ہو, بلکہ اس نے سونے کے بچڑے کا جو بت تھا اس کو اس نے باریک پیس کر پانی میں اس نے بہا دیا. پھر ہم نے سیکھا کہ نئے عہد نامہ میں خدا کا بندہ جو یوحنا ہے اس نے ہیرودیس سے کہا کہ تو اپنے بھائی کی بیوی رکھتا ہے, یہ تیرے لیے روا نہیں ہے. پھر ہم نے سیکھا کہ جب داؤد نے گناہ کیا تو خدا نے داؤد کو بھی نہیں چھوڑا. خدا نے ناتن کو کہا کہ جا اور جا کر اس سے کلام کر کہ تو نے ہتیوریا کی بیوی لی ہے اور تو نے اس کے شوہر کو قتل کروا دیا ہے, اس لیے میں تجھ سے ناراض ہوں. اگر وہ جا کر اس کو آگاہ نہ کرتا, نہ اس کو جا کر بتاتا, تو اس نے توبہ نہیں کرنی تھی. سو آج ہمارا جو دوسرا جو اس مضمون کا جو حصہ ہے, پارٹ ہے, وہ یہ ہے کہ اگر ہم آگاہ نہ کریں, یا وہ لوگ جو آگاہ نہیں کرتے, جو کسی کو نہیں بتاتے, خبردار نہیں کرتے, تو ان کے تعلق سے خدا کا کلام کیا کہتا ہے. میرے ساتھ نکالیے یسایا کی کتاب اس کا 56 باب 56 چیپٹر ہے اور اس کی نامی آیت ہے 9-8, یعنی نامی آیت ہے. نکال لیجیے ذرا جلدی سے میرے ساتھ اس حوالے کو, اور ہم سیکھیں گے آج اس مضمون کا یہ دوسرا حصہ کہ وہ لوگ جو کسی کو آگاہ نہیں کرتے, نہیں بتاتے, ان کے بارے میں خدا کا کلام کیا فرماتا ہے. کلام خدا میں لکھا ہے, اے دشتی حیوانوں تم سب کے سب کھانے کو آؤ, ہاں اے جنگل کے سب درندوں, اس کے نگہبان اندھے ہیں, وہ جاہل ہیں, وہ سب گونگے کتے ہیں جو بھونک نہیں سکتے, وہ خواب دیکھنے والے ہیں جو پڑے رہتے ہیں اور اونگتے رہنا پسند کرتے ہیں, اور وہ لالچی کتے ہیں جو کبھی سیر نہیں ہوتے, وہ نادان چرواہے ہیں, وہ سب اپنی اپنی راہ کو پھر گئے, ہر ایک ہر طرف سے اپنا ہی نفع ڈھونڈتا ہے, ہر ایک کہتا ہے تم آؤ میں شراب لاؤں گا اور ہم خوب نشے میں چور ہوں گے, اور کل بھی آج ہی کی طرح ہوگا بلکہ اس سے بھی بہتر ہوگا. کلام خدا کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو. تو یہاں پر خدا چرواہوں کو ڈانٹ رہا ہے, چرواہوں کے تعلق سے آگاہ کر رہا ہے کہ وہ چرواہے جو خاموش رہتے ہیں, جو اپنا منہ بند رکھتے ہیں, ان کے تعلق سے نمبر 1 وہ حیوان ہیں. وہ کیا ہیں؟ خدا کا کلام ان کو حیوان کہتا ہے. نمبر 2 خدا کا کلام ان کو درندے کہتا ہے. یسوع مسیح نے فرمایا کہ وہ بھیڑوں کے روپ میں آتے ہیں, لیکن اندر سے پھاڑنے والے کیا ہوتے ہیں؟ بھیڑیے ہوتے ہیں. اور نمبر 3 لکھا ہے اس کے نگہبان اندھے ہیں, اور یسوع مسیح نے فرمایا اندھا اندھے کو راہ نہیں دکھا سکتا, اگر وہ دکھائے گا تو دونوں گڑھے میں گر پڑیں گے. تو راہ دکھانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ استاد کہتے ہیں, چرواہا کہتے ہیں. تو اگر راہ دکھانے والا اس کو خود راہ نامعلوم ہو تو کیا وہ کسی اور کو راہ دکھائے گا؟ اگر وہ خود ہی روحانی طور پر اندھا ہے, بائبل کہتی ہے اس جہاں کے خدا نے لوگوں کی آنکھوں کو اندھا کر دیا اور دماغوں پر پردہ ڈال دیا تاکہ وہ خدا کے کلام کو نہ سنیں. اور خدا کا بندہ پولس دوسرا کرنتھیوں 4 باب میں کہتا ہے کہ اگر ہماری خوشخبری پر پردہ پڑا ہے یا پردہ ڈالا گیا ہے یا کچھ لوگوں نے پردہ ڈال دیا ہے تو ہلاک ہونے والوں ہی نے ڈالا ہے, لیکن ہم اپنی مرادی نہیں بلکہ مسیح یسوع کی مرادی کرتے ہیں, اور لوگوں کے دلوں میں اپنی نیکی بٹھاتے ہیں اور حق کو ظاہر کرتے ہیں, حق کو عیاں کرتے ہیں. راہ, حق اور سچائی جو یسوع مسیح ہے اور اس کا کلام ہے, حق ظاہر کر کے لوگوں کے دلوں میں
नेकी बिठाते हैं। सो यहां पर लिखा है उसके निगाहबान के हैं, अंधे हैं। और आगे लिखा है वो सब जाहिल हैं, वो सब गूंगे कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते हैं। तो वो इंसान ही, कुत्ते तो नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह है कि अगर कोई कुत्ता गूंगा है तो वो भौंक नहीं सकता है, तो वो इंसान। लेकिन ये कलाम कह रहा है कि वो खामोश रहते हैं, भौंकते नहीं है। कुत्ता जो घर में रखा होता है उसका काम क्या होता है? भौंकना। क्या काम होता है? क्यों? क्योंकि उसका मालिक उसको खाने के लिए देता है, उसको पीने के लिए देता है, उसको रहने के लिए देता है। तो कुत्ते का काम होता है कि वो वफादार हो। अगर कुत्ता घर में रखा है, वो भौंक रहा है, किसी को काट रहा है, तो वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। खुदा यहां पर शिकवा करता है, बल्कि यिर्मयाह में भी शिकवा करता है। उन चरवाहों पर अफसोस जो भेड़ों का दूध भी दोते हैं, ऊन भी उतारते हैं, लेकिन सही चरागाह उनको नहीं देते, जिसकी वजह से मेरी भेड़ें कमजोर पड़ गई हैं, बीमार पड़ गई हैं। ठीक चरागाह उनको नहीं देते, सही खाना उनको नहीं देते, सारी जिंदगी दूध ही सिर्फ पिलाते रहते हैं। उनको गोश्त भी खिलाना चाहिए, उनको बेचोर करने के लिए उनको डांटना भी चाहिए, उनको मलामत भी करनी चाहिए, उनको नसीहत भी करनी चाहिए। इसलिए बाइबल कहती है कि वो सब क्या हैं? गूंगे कुत्ते हैं जो भौंक नहीं सकते। और अगर लिखा वो ख्वाब देखने वाले हैं। अच्छा, जो बंदा ज्यादा सोता है ना उसको ख्वाब भी ज्यादा आते हैं। खाना ज्यादा, सोना ज्यादा, काम कट करना, ऐसे है ना? तो ऐसे लोगों को ज्यादा ख्वाब आते हैं। तो इसलिए लिखा है वो ख्वाब देखने वाले जो पड़े रहते हैं और ऊँगते रहना पसंद करते हैं। और वो लालची कुत्ते हैं, उनका पेट, बाइबल कहती है, उनका खुदा है। बहुत से लोग जो खिदमत में आते हैं वो सिर्फ सहूलियात देख कर आते हैं कि जी बने अपना चर्च मिल जाएगा, बनी अपना कलीसिया मिल जाएगी, पास्टर हाउस मिल जाएगा, तनख्वाह लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप सर्च करके देख लें, मैं ये बात ऐसे नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है, आप सर्च करके देख लें। ज्यादातर लोग इसी तरह खिदमत में आते हैं, लालच की वजह से। खिदमत होती नहीं उनके पास, ना उनकी बुलाहट होती है। बाइबल कहती है जब तक कोई शख्स खुदा की तरफ से बुलाया ना जाए, अपने आप इज्जत का ओहदा इख्तियार नहीं कर सकता। लेकिन यहां पर क्या लिखा है कि वो सब लालची कुत्ते जो कभी शेर नहीं होते, वो नादान चरवाहे हैं, वो सब अपनी अपनी राह को फिर गए, हर एक हर तरफ से अपना ही नफा ढूंढता है। लेकिन असल ओरिजिनल खिदमत क्या है कि खुदा बुलाए और बंदा सब कुछ मूसा की तरह छोड़ दे, महल को छोड़ दे, अच्छी रहाइश को छोड़ दे, सब कुछ छोड़े और चल पड़े और जीरो से काम शुरू करे। इसको ओरिजिनल खिदमत कहते हैं। और फिर पता चलता है कि खिदमत है या नहीं है। सो आगे लिखा है हर एक कहता है तुम आओ मैं शराब लूंगा और हम खूब नशे में चूर होंगे। मुझे ये बताएं कि चरवाहे को शराब पीनी चाहिए कि नहीं? चरवाहे को सिगरेट पीनी चाहिए कि नहीं? अगर मैं पीता हूं शराब, मिसाल देता हूं, अगर मैं सिगरेट पीता हूं तो मैं आपको मना कर सकता हूं? मैं कभी नहीं आपको मना कर सकता। इसलिए आज के चरवाहों को देखकर लोग ठोकर खाते हैं। वो कहते हैं जी फलां भी तो पी रहा है। जैसे आपको बताइए गांव में भी बहुत सारे लोग पीते हैं, चरवाहे पीते हैं। अगर इतनी सिगरेट अच्छी होती पीने के लिए तो मुझे बड़ी पसंद थी, मैं फिर कभी ना छोड़ता, क्योंकि मैं पीता था तौबा करने से पहले। मैं कहता था खाना खाने के बाद सिगरेट ना पिए ना तो रोटी हजम नहीं होती, फिर मैं कभी ना छोड़ता। लेकिन क्यों छोड़ी? एक तो कलाम के खिलाफ, और दूसरी बात कि हमारा बदन रूल कुदस का मकदस है, और तीसरी बात कि पास्टर एक नमूना है। अगर पास्टर ने सिगरेट पीनी है तो कलीसिया ने तो फिर आप ही पीनी है, ऐसे ही ना। अगर पास्टर शराब पिएगा तो वो कलीसिया को कैसे मना करेगा? फिर वो नहीं कहना ना ठीक है भाजी तुसी कड्डो बेचो पीवो, मैनू की मैं तो चलता ही चाहिए। लेकिन ऐसे पास्टर खुदा को पसंद नहीं। आमीन। आगे लिखा है हम खूब नशा में चूर होंगे और कल भी आज ही की तरह होगा, बल्कि इससे भी बेहतर होगा। इसका मतलब कल भी ऐसा काम किया और आज भी ऐसा ही काम कर रहे हैं। मेरे साथ जरा दूसरा हवाला निकाल लीजिए जल्दी से, और यूहन्ना का यह दूसरा खाता है, जरा ध्यान से इसको मेरे साथ सुनिएगा और पढ़िएगा। यूहन्ना का दूसरा खाता है और उसका पहला बाब और उसकी 7वीं आयत से हम पढ़ेंगे।
क्योंकि बहुत से ऐसे गुमराह करने वाले दुनिया में निकल खड़े हुए हैं जो यीशु मसीह के मुजस्सम होकर आने का इकरार नहीं करते। गुमराह करने वाला और मुखालिफ मसीह यही है। अपनी बाबत खबरदार रहो। यह कलीसिया को कहा गया है जी, अपनी बाबत खबरदार रहो, होशियार रहो, तैयार रहो, ताकि जो मेहनत हमने तुम पर की है वो तुम्हारे सबब से जाया ना हो जाए, बल्कि तुमको उसका पूरा अजर मिले। मैं सुबह पहली मीटिंग में भी ये बता रहा था कि 2004 से मैंने खिदमत का स्टार्ट लिया, तो तकरीबन ये 17वां साल है फुल टाइम खिदमत करते हुए। तो मैंने कहा कि 17 साल हो गए हैं कलाम सुनाते हुए, आपको सही तालीम देते हुए। और अगर अब भी आप में से किसी शख्स ने इस तालीम को छोड़ा और आप गलत तालीम की तरफ चले गए, तो फिर हमारी मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाएगी। ठीक है जी, इसलिए वो कहता है कि कहीं तुम्हारे सबब से हमारी मेहनत ज़ाया ना हो जाए। जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की तालीम पर कायम नहीं रहता, किसकी तालीम पर? ये यहाँ पर किसी डिनोमिनेशन की तालीम का जिक्र नहीं है या किसी मिशन का जिक्र नहीं है, बल्कि यहाँ पर खुदा का बंदा यूहन्ना कहता है कि वो शख्स जो मसीह की तालीम पर कायम नहीं रहता। मसीह की तालीम क्या है? बुनियादी ईमान, तौबा, बपतिस्मा, रूह कुदस, ये मसीह की तालीम ही है ना। पाकिशा, गैर जुबानों को तर्जमा, रूह की 9 नेमतें, रूह की 5 खिदमतें, ये किसकी तालीम है? मसीह की तालीम है। और अगर कोई शख्स मसीह की तालीम पर कायम नहीं रहता तो सुन ले खुदा का कलाम क्या कहता है। आगे लिखा है, उसके पास खुदा नहीं। जो इस तालीम पर कायम नहीं रहता उसके पास खुदा नहीं। और आगे लिखा है, जो उस तालीम पर कायम रहता है उसके पास बाप भी है और बेटा भी है। अकेला बेटा नहीं है। बहुत से लोग जो हैं वो सिर्फ बेटे को मानते हैं कि बेटा खुद ही बाप था, फिर वो बेटा बन गया, फिर वो रूह कुदस बन गया। हमने बाप, बेटे, रूह कुदस तीनों को मानना है। रूह कुदस हमारे अंदर है और बाप भी हमारे पास है, बेटा भी हमारे पास है। और आगे लिखा है, अगर कोई तुम्हारे पास आए, बाइबल पकड़कर तुम्हारे पास आए और ये वाली तालीम तुम्हें ना दे, ये वाली बाइबल की तालीम तुम्हें ना दे, तो सुन ले खुदा का कलाम क्या कहता है। लिखा है, अगर कोई तुम्हारे पास आए और ये तालीम ना दे तो ना उसे अपने घर में आने दो और ना उसे सलाम करो। क्योंकि जब सलाम तो आप लेंगे तो फिर उसके बाद गुफ्तगू शुरू हो जाएगी, फिर आप चाय के लिए सुलह भी कर लेंगे, ठीक है ना, उसको सुलह मार लेंगे चाय के लिए, फिर खाने के लिए भी हो सकता है, फिर उसके बाद हो सकता है कि वो कड़वा बीज बो कर वहां से चला जाए और थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर दे। इसलिए मोहतात रहना है, होशियार रहना है। यूहन्ना ही कहता है अपने खत में 4 बाब में, हर एक रूह का यकीन ना करो, रूहों को आजमाओ कि वो खुदा की तरफ से है या कि नहीं है। अगर कोई तुम्हारे पास आए और ये तालीम ना दे तो ना उसे अपने घर में आने दो, ना उसे सलाम करो, क्योंकि जो कोई ऐसे शख्स को सलाम करता है वो उसके बुरे कामों में शरीक होता है। मेरे साथ एक और हवाला देखिए, गलतियों का खत निकालिए, गलतियों का खत जल्दी से, गलतियों का खत उसका पहला बाब और उसकी 6ठी आयत से हम पढ़ेंगे। मैं ताज्जुब करता हूं, यानी मैं हैरान होता हूं कि जिसने तुम्हें मसीह के फजल से बुलाया उससे तुम इस कदर जल्द फिर कर किसी और तरह की खुशखबरी की तरफ मायल होने लगे। यहां पर रसूल कलीसिया से शिकायत कर रहा है, गिला कर रहा है कि मैं इस बात से हैरान हूं, मैं इस बात से ताज्जुब करता हूं कि तुमने मसीह की खुशखबरी को सुना और उसको सुनकर तुम बहुत ही जल्दी किसी और खुशखबरी की तरफ मायल होने लगे। जिन्हें लाई गली थे ओदे नाली तोड़ चली। समझ आ रही है जी? और आगे लिखा है, मगर वो दूसरी नहीं, अलबत्ता बास ऐसे हैं, सारे लोग नहीं, 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती, मगर बास ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह की खुशखबरी को बिगाड़ना चाहते हैं, मसीह की तालीम को बिगाड़ना चाहते हैं। तुम में से बहुत सारे ऐसे चरवाहे हैं, ऐसे उस्ताद हैं
जो मसीह की खुशखबरी को बिगाड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर हम या आसमान का कोई फरिश्ता भी उस खुशखबरी के सिवा जो हमने तुमको सुनाई और कोई तुम्हें खुशखबरी सुनाता है तो वो मलाउन है। ये 66 किताबें जो कलम बंद हो चुकी है पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक, बल्कि आखिरी बाब आखिरी आयत में लिखा है इस नबूवत की किताब को बढ़ाने वाले पर, घटाने वाले पर, कलाम में जो आपने लिखी हैं उस पर नाज़िल होंगी।